Students, today we are starting our sixth poem from section B of our book. The name of the poem is Father Returning Home, written by Dilip Chitre. Dilip Chitre is a very famous English poet writing in, Indian poet writing in English. Okay? Now, Father Returning Home. What this poem is about, let us read the introduction a bit so that we know what the idea contained in the poem is. Man's estrangement from the man-made world is the theme of this poem. Very important underline. तो इस पोएम का सेंट्रल आइडिया क्या है? मैन्स एस्ट्रेंजमेंट. एस्ट्रेंजमेंट क्या होता है? एलियनेशन. एलियनेशन क्या होता है? सेपरेशन, अलग हो जाना, दूर हो जाना. ठीक है, तो इंसान जो है वो अपनी ही बनाई इस दुनिया से अलग होता जा रहा है. दैट इज द थीम ऑफ दिस पोएम. In this world full of hurry and worry, nobody has time to take interest in others. आजकल की जो मॉडर्न सोसाइटी है, सो कॉल्ड जो मॉडर्न सोसाइटी है, उसमें किसी के पास किसी के लिए टाइम ही नहीं है. ठीक है, इतनी हरी है सबको, इतनी जल्दबाजी है, अपनी अपनी ही वरीज में सब बिजी हैं कि किसी दूसरे की वरी की किसी को पड़ी ही नहीं. Especially the old senior citizens in the society. Now we are the young generation, we are set in our ways, है ना. हमें we know technology a bit, हम समझते हैं, लेकिन जो सीनियर सिटीजन हैं they do not understand technology. उनको वो ह्यूमन टच जरूरी होता है. जैसे वी पीपल आर वेरी कंफर्टेबल विद आवर फोन्स. अगर हमें कोई एक अकेले रूम में भी हमें छोड़ दें 1 घंटे के लिए, वी विल बी वेरी कंफर्टेबल अगर हमारे पास इंटरनेट है, अगर हमारे पास फोन है. बट दी older people, they are not very well acquainted with the technology, है ना. तो उनको वो human touch चाहिए. They need people to talk, to share, and discuss their worries or whatever. Now this poem has been taken from Dilip Chitre's collection of poems, Traveling in a Cage. It gives us the picture of a sad old man who travels to work by a local train. Okay, we are not going to read this. वो हम सीधा डायरेक्टली पोएम में ही पढ़ेंगे व्हाट दिस पोएम इज अबाउट. लास्ट लाइन पढ़ रही हूँ. दिस पोएम डील्स विद द थीम ऑफ मॉडर्न मैन्स एलियनेशन in a complex urban world. Underline, very important. You can use this line in your answers as well. तो ये सेंट्रल थीम है इस पोएम की. एलियनेशन क्या होता है? एलियन इज समवन, एलियंस हम कहते हैं ना. एलियन एलियन क्या होता है? समवन हु इज डिफरेंट फ्रॉम अस. ठीक है, सो एलियनेशन मीन्स जब आप अलग हो जाते हो. ठीक है, डिस्टेंस आ जाता है आपका दूसरों से, आप अलग हो जाते हो और शेयर नहीं कर पाते किसी से. दैट इज एलियनेशन. सो ये जो कॉम्प्लेक्स अर्बन सोसाइटी आजकल की मॉडर्न सोसाइटी है, इसमें इंसान स्पेशली सीनियर सिटीजन्स किस तरह से अलग हो रहे हैं, डिस्टेंट हो रहे हैं, वो इस पोएम की सेंट्रल थीम है. नाउ लेट अस स्टार्ट the actual poem. My father travels on the late evening train, standing among silent commuters in the yellow light. Suburbs slide past his unseeing eyes, his shirt and pants are soggy and his black raincoat, stained with mud, and his bag stuffed with books is falling apart. His eyes, dimmed by age, fade homeward through the humid monsoon night. My father. Now the poet is talking about his own father. He is traveling on the late evening train, standing amongst silent commuters in the yellow light. So it is late in the evening और कहता है मेरे father जो है he is traveling, train से travel कर रहे हैं amongst the silent commuters. Commuters कौन होते हैं बेटा? Commuters are फेलो पैसेंजर्स, फेलो ट्रैवलर्स, जो कि चुपचाप वहां पे खड़े हैं. ऐसा होता है ना, अगर आप डेली इफ यू ट्रैवल इन अ बस और इन अ ट्रेन, तो वही सेम लोग ही उस टाइम पे आपको मिलते हैं. सो दीज आर साइलेंट कम्यूटर्स और उनके बीच ही वो खड़े हैं. इन द येलो लाइट इट इज गेटिंग डार्क. तो येलो लाइट, suburbs slide past his अनसीइंग आईज. सबर्ब्स, सबर्ब एरिया कौन सा होता है बेटा? जो कि कंट्री साइड बोल सकते हो, आउटर एरिया ऑफ द सिटी, सेंटर जो कि सिटी के सेंटर से दूर हो.
ठीक है. Unseeing eyes. Now, eyes that are unseeing. When you travel from one way daily, अगर आप एक ही रास्ते से रोज गुजरते हो, you stop observing that path, है ना? उसको आप ऑब्जर्व नहीं करते हो. आप देखते तो हो ट्रेन से बाहर, बस से बाहर, लेकिन आप बस देखते जा रहे हो, ऑब्जर्व नहीं करते हो. ठीक है, उसको नोटिस नहीं करते कुछ. अनसीइंग. तो सीइंग बट अनसीइंग. आई होप इट इज क्लियर. You're just looking at something, you are not noticing, you are not paying attention. So वो बस बाहर की तरफ देखता जा रहा है खिड़की से. His shirt and pants are soggy and his black raincoat stained with mud. तो because it is raining outside, monsoon season है, तो उनका जो उसकी जो शर्ट है फादर की and pants, they are soggy. Soggy means wet, गीली है. And रेनकोट पहन रखा है, वो भी मड से, कीचड़ से स्टेन्ड है, कीचड़ से लथपथ है. एंड द बैग इज स्टफ्ड विद बुक्स. और जो बैग पीछे उन्होंने टांग रखा है वो उसमें बुक्स भरी पड़ी हैं. इट इज फॉलिंग अपार्ट. वो भी ऐसे लग रहा है जैसे वो खुल के गिर जाएगा. His eyes dimmed by age and a line. So he's an old man. He's the father of the poet. So he's old because of the old age. उनकी आंखों की रोशनी भी dim हो गई है, धीमी हो गई है. So the eyes dimmed by age fade homeward through the humid monsoon night. सो ह्यूमिड मॉनसून नाइट. तो बेटा ये एक तरह का सिंबलिज्म है. पोएट ने जिस तरह की इमेजरी प्रेजेंट की है. इमेजरी क्या होता है? आसपास की जो चीजें हैं वो क्या बड़ी डल सी दिखाई है. ह्यूमिड मॉनसून सीजन, तो बहुत ही डल सी, बहुत ही ड्रियरी, सैड पिक्चर दिखाता है पोएट का. ये जो पोएट की ये जो इमेजरी है, कहते हैं वो सफर करके वापस घर की तरफ आ रहा है. Now I can see him getting off the train like a word dropped from a long sentence. जैसे एक लंबी चुप्पी के बाद आप कुछ सेंटेंस कुछ बोलते हो, उसी तरह उस लंबी मोनोटनस क्या होता है? एक लय में, उसमें कोई यू नो बेसिकली बोरिंग, एक मोनोटनस वो सफर से वो अभी ट्रेन से उतरा. एंड ही इज हरिंग अक्रॉस द लेंथ ऑफ द ग्रे प्लेटफॉर्म. और भागता जा रहा है प्लेटफॉर्म की तरफ. ठीक है, हरीज मीन तेजी से भागते हुए जा रहा है प्लेटफॉर्म की तरफ. ग्रे प्लेटफॉर्म. अगेन लुक एट द सिंबलिज्म, लुक एट द इमेजरी. but beta a poet when a poet wants to uh, tell you something about the surroundings, या तो वो बोल के बता देता है. मोस्टली पोएट्स क्या करते हैं? इमेजरी यूज करते हैं. ठीक है, द पोएट विल यूज द इमेजरी. ठीक है, कि आसपास की चीजें कैसी हैं. तो अगर कोई अच्छी हैप्पी पिक्चर दिखानी होगी पोएट ने, वो क्या दिखाएगा? कलर्स लाइक रेड, येलो, ऑरेंज, मे बी ब्लू. तो ब्राइट कलर्स हैं जो. ठीक है, लेकिन अगर आपको कुछ डल, कुछ ऐसी सैड पिक्चर दिखानी है, तो द पोएट विल टॉक अबाउट कलर्स लाइक ब्राउन, ग्रे. ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या दिखा रहा है? ही showing the the decay of the. जैसे जो फादर है, ही इज एन ओल्ड मैन, ऐसा लग रहा है कि वो जो प्लेटफॉर्म, इट इज ऑल्सो डिकेड, ग्रे, बोरिंग. ठीक है, सो यू जस्ट नीड टू ग्रैब दिस आइडिया कि ये सारी सेटिंग उसने बड़ी मोनोटोनस सी सेट की है. His chappals are sticky with mud, but he hurries onward. तो अभी पिक्चर क्या है हमारे सामने? He is traveling in a train. बाहर देख रहा है with unseeing eyes, मतलब ऐसे बाहर देखता जा रहा है, but he's not observing anything. His eyesight is dim. He's going towards his home. Finally, जैसे लंबी चुप्पी के बाद कुछ बोलते हैं हम, वैसे ही after a long, boring, monotonous travel in a train, he gets off. नीचे उतरता है, बोरिंग से प्लेटफॉर्म की तरफ वो चला जाता है, भागता जा रहा है. रेलवे लाइन क्रॉस करके लेन में एंटर करता है. His chappals are again sticky with mud. तो उसकी चप्पलें भी कीचड़ से भरी पड़ी हैं. But he is hurrying onward. वो आगे बढ़ता ही जा रहा है. So a very very dreary, very boring, monotonous and sad picture has been
painted by the poet. Now, home again. घर पहुंच गया father. Home again. Look at these two words. Home again. इससे क्या पता चल रहा है? Repetition. फिर से घर आ गया, मतलब कोई नई बात नहीं है, फिर से घर. तो it is again showing sadness, boredom, monotony. ठीक है, एक रास्ता, एक ही चीज होती जा रही है आपकी लाइफ में, nothing exciting. So कहता है I see him drinking weak tea, eating a stale chapati, reading a book. He goes into the toilet to contemplate man's estrangement from a man-made world. Underline, very important. Coming out, he trembles at the sink, the cold water running over his brown hands. A few droplets cling to the graying hairs on his wrists. Home again. फिर से घर आ गया. अब I can see him having a tea. Tea भी कैसी है? Again very boring, sad, a weak tea, not a strong one, not a fresh one. Weak tea पी रहा है वो. Stale chapati, again मुझे कहने की जरूरत नहीं है. Again stale chapati, nothing exciting about it. So the life is really sad. And reading a book, nobody to talk to. कोई बात करने के लिए नहीं है फादर के पास. खुद ही घर आके खाना खा रहा है, वो अकेले में बुक पढ़ रहा है. एंड ही गोज इनटू द टॉयलेट, और उसके बाद वो बाथरूम में जाता है टू कंटेम्पलेट. गोइंग टू द टॉयलेट, टॉयलेट में जा रहा है. कंटेम्पलेटिंग, कंटेम्पलेट क्या होता है? डीप थिंकिंग. व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट समथिंग, व्हाट इज ही थिंकिंग अबाउट? ही इज थिंकिंग अबाउट man's estrangement from a man-made world. Very important line. I would like you to quote this line in your answer. तो किस चीज के बारे में सोच रहा है वो? ही इज थिंकिंग अबाउट द सैड प्लाइट ऑफ हिज लाइफ. प्लाइट क्या होता है? हालात. कितने बुरे हालात हैं उसके, कितने सैड, कितनी यू नो पुअर कंडीशन है उसकी. नोबडी ही हैज टू टॉक टू, एंड ही हैज बीन estranged. अलग हो चुका है अपनी अपनी ही इस बनाई हुई दुनिया में. अपने ही वो बच्चे जिनको उसने बड़ा किया, उन्हीं से वो अलग हो चुका है. कमिंग आउट, बाहर आया, एंड ही इज ट्रेम्बलिंग एट द सिंक. He's trembling at the sink. Sink पे वो हाथ धो रहा है, maybe after having his food, after his meal, and he's trembling. Now the trembling can be because of two reasons. One, he's old. जब आप बूढ़े हो जाते हो, you don't have that much of control on your limbs, तो body parts थोड़े कांपने लगते हैं. दूसरी बात, because of this terrible thinking, इन चीजों के बारे में सोच के he is terrified कि क्या मेरी जिंदगी हो चुकी है. बेटा, नाउ यू आर फुल ऑफ लाइफ, यू आर इन द प्राइम ऑफ योर यूथ, है ना. लेकिन जैसे जैसे बूढ़े होते जाते हैं, हम बड़े हो जाते हैं, फिर उसके बाद व्हेन वी एंटर द ओल्ड एज, पीपल स्टार्ट डिस्टेंसिंग देमसेल्व्स फ्रॉम अस. हमसे दूर होते जाते हैं वो. और जब हमें जरूरत भी है किसी की बात करने के लिए, तो भी ज्यादातर हमारे पास कोई होता नहीं है. So that is a very sad picture, right? So he's trembling, thinking about all this. The cold water running over his brown hands, a few droplets cling to the graying hairs on his wrists. His sullen children have often refused to share, underline, jokes and secrets with him. He will now go to sleep. So while he is washing his hands at the sink, the cold water is running on his brown hand. तो उसकी स्किन के ऊपर, उसके हाथों के ऊपर से ठंडा पानी बहता जा रहा है. A few droplets, कुछ बूंदे पानी की, they cling to the graying hairs, तो उसके बालों में अटक जाती हैं. Graying because obviously because of the old age, तो उसकी कलाइयों पे, उसके हाथों पे कुछ बूंदे जो है, they cling, they are stuck on his hair. His sullen children, sullen means sullen with a bad mood. तो उसके बच्चे, they do not really enjoy talking to him, they do not like him, have often refused to share. They do not want to share their worries or their joys with their father. They often ignore him. They do not share their jokes or their secrets with him. They do not like to have a conversation with their father. He will now go to sleep. Lonely, he is going to sleep now, listening to the static on the radio, dreaming. एंड अभी ही विल गो स्लीप. अभी खुद ही अकेला वो फादर जो है, ही विल, वो सो भी जाएंगे. एंड लिसनिंग टू द स्टैटिक ऑन द रेडियो. स्टैटिक क्या होता है? बेसिकली डिस्टर्बेंस. रेडियो उसने चला रखा है उस अकेलेपन से लड़ने के लिए, टू फाइट दैट लोनलीनेस दैट ही हैज.
he has turned the radio on, but the radio is also not helping him, उसको ज़्यादा help नहीं कर पा रहा, because there is static on the radio. जब आप रेडियो सुन रहे हो या टीवी सुन रहे हो, there is some disturbance, the noise that does not make any sense, तो वो static चल रहा है उस पे. Dreaming, he is going into the sleep, लेकिन एक slumber सा होता है ना, when एक stage होती है जब आप जाग भी नहीं रहे हो, सो भी नहीं रहे हो, so he is in that stage and he's dreaming. Underline, very important line. He's dreaming of his ancestors and his grandchildren, thinking of nomads entering a subcontinent through a narrow pass. So he's thinking, because he has बेटा nobody to talk to. वो अपने ही ख्यालों की दुनिया में खोया हुआ है. He's thinking of his ancestors. Ancestors क्या होते हैं? जो कि उसके पूर्वज है ना? तो वो जो बुजुर्ग हैं, जो उसके उसके जो एंसेस्टर्स हैं, उनके बारे में सोच रहा है. मतलब पास्ट के बारे में सोच रहा है. आगे किसके बारे में सोच रहा है? ग्रैंड चिल्ड्रन. साथ में ग्रैंड चिल्ड्रन के बारे में भी सोच रहा है. ठीक है, मतलब फ्यूचर. सो ही इज टॉसिंग बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर, thinking of nomads entering a subcontinent through a narrow path. So he has been discarded by his own children. He has been discarded. Discard क्या मतलब? छोड़ देना. He has been left estranged by his own kid, his own mankind, and nobody is there to talk to him. Just like he feels like a nomad. Nomad क्या होते हैं? जो लोग कबीले वाले, एक जगह से दूसरी जगह पे they keep on traveling, उनका घर बार नहीं होता. तो here यहाँ पे बेटा symbolism, maybe he is also thinking about death. Maybe he is thinking about his life, कि ये life जो है it is short lived, and he is just like a nomad in this on this earth, and maybe he will die and he will cross this subcontinent. He will leave this world through a narrow path. So जो लास्ट है बेटा, एंड है, इट इज प्रिटी थोड़ा सा ऑब्सक्योर है, थोड़ा सा एब्सर्ड है, अनक्लियर छोड़ा है पोइट ने. इसके बहुत सारे मीनिंग्स निकल सकते हैं. इसका मीनिंग एक तो ये निकल सकता है कि ऑफन हम जब बूढ़े हो जाते हैं, आपके घर में बेटा बुजुर्ग होंगे, आप कभी उनके पास बैठोगे ना, तो दे विल ऑफन टॉक टू यू अबाउट ओल्ड टाइम्स. पुराने टाइम को याद करने की उनको आदत होती है कि हमारे टाइम में तो ऐसा होता था, है ना? So maybe he's thinking about his past just like regular old people. So he's jumping between past and present, past and future. तो याद कर रहा है वो सारी चीजें, सोच रहा है, ड्रीम कर रहा है. दूसरे लेवल पे he's thinking about his future, his sad future, and he's feeling like घर बार होते हुए भी, बच्चे होते हुए भी, he's feeling like a nomad. एक ऐसा लग रहा है कि he belongs to no one. जैसे कबीले वालों का they belong to no place. कभी आज वो यहाँ पे हैं, कल वो अपने घर बार लेके अपने जो कैटल हैं, पशु हैं, जो अपने बच्चे हैं, उनको लेकर कभी कहीं और जाके डेरा बसा लेंगे. So just like a nomad, he is now here, but maybe he will just cross this subcontinent, and he'll go somewhere else. Maybe he's thinking about his death. So that is the whole poem. So basically he paints a very sad picture. Dilip Chitre paints a very sad picture of the complex urban world where we do not acknowledge the sacrifices our parents, our grandparents make for us, and we take them for granted and we leave them helpless. जब उनको सबसे ज्यादा जरूरत होती है हमारी, हम उनको छोड़ देते हैं. क्योंकि ये किसकी वजह से है? इट इज बिकॉज ऑफ द मॉडर्न कंज्यूमरिस्ट सोसाइटी, जहाँ पे हर एक चीज को हम सिर्फ कंज्यूम करना जानते हैं. जब पेरेंट्स की जरूरत होती है, हम वी टेक केयर ऑफ देम, बट जब उनको की जरूरत खत्म हो जाती है, वी डिस्कार्ड देम. So that is what the modern urban society is. I hope it's been understood by you all. Any question if there, we can discuss. हाँ जी बेटा, समझ आई?